Hello students, welcome to this important lecture of topic vector for MSTCT, and in this lecture we are going to see all these important properties of what you are seeing here. So this is scalar product yani dot product. So here in this lecture we will see the scalar, that is the dot product, in detail and their properties. So these are the properties one by one. Every property we will discuss, and after these properties, अगर ये properties आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं, then you can solve any type of problem on scalar product, that is the dot product. So this is the first session of product of vectors. इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं वेक्टर्स के. तो अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चालू होगा. तो फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, बाद में आएगा वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो सी फर्स्ट वी विल डिफाइन द व्हाट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. तो उसका नाम ही है स्केलर प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, एंड दैट इज डेनोटेड बाय दिस डॉट. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. सो हियर स्टूडेंट्स, if I have these two vectors A and B, and if the angle between these two vectors is theta, then scalar product, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एक प्रोडक्ट है. इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है. तो फर्स्ट नाउ वी आर डीलिंग विथ स्केलर प्रोडक्ट. सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A and वेक्टर B is A dot B. Scalar product of vector A and vector B is denoted by A dot B, and this scalar product is given by AB cos theta, where A is the magnitude of vector A and B is the vector of vector B. So it is also written as mod A into mod B into cos of theta, where theta is the angle between vector A and vector B. So this is the very short and sweet definition of scalar product, that is the dot product. Now the important point in this lecture is to discuss all these properties. So first property is A dot B equal to B dot A. So इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है. स्केलर प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव. A dot B और B dot A सेम होता है. So we have A dot B equal to AB cos theta. AB cos theta हमेशा याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो A dot B अगर AB cos theta है तो B dot A होगा BA cos theta, and AB cos theta and BA cos theta are equal. Therefore A dot B and B dot A सेम होगा. So scalar product is commutative. A dot B equal to B dot A. Second property, value of A dot B is always less than or equal to AB, greater than or equal to minus AB. So we have A dot B equal to AB cos theta. No, so see this cos theta. So value of cos theta is always less than or equal to 1, greater than or equal to minus 1. So if I multiply this inequality by AB, so minus AB is less than or equal to AB cos theta, and less than or equal to 1 into AB is AB. So what is this AB cos theta? So this AB cos theta is A dot B. Therefore A dot B is less than or equal to AB and greater than or equal to minus AB. So this is the second property of dot product, that is the scalar product. Now see the third property. If A is parallel to B in same direction, अगर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, then A dot B equal to AB, that is only the product of their magnitudes. And if vector A and vector B are parallel but their direction is opposite, A and B are parallel in opposite direction, then this dot product is minus AB. तो ये माइनस ए बी क्या होता है? माइनस ए बी इज माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. सो नेगेटिव प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंड पॉजिटिव प्रोडक्ट ए इंटू बी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी सेम. सो व्हाई दिस is happening here?
So we have again definition of A dot product is A dot B equal to cos theta. तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, suppose this is the vector A and this is the vector B, their direction is same, then angle between them is 0. Then angle between them is 0. So A dot B equal to AB into cos of theta. Theta क्या होगा 0. So cos 0 क्या होगा 1. So AB into 1 is AB. Now if A and B are the vectors which are parallel in opposite direction, if A and B are the vectors which are parallel in opposite direction, then we say that the angle between them is 180 degree, that is pi radian. So in this case A dot B equal to AB into cos of theta. So here theta is 180, cos of 180 is minus 1. So this is equal to minus AB. So this is the property number 3. A dot B equal to AB if A and B are parallel in same direction, and A dot B equal to minus AB if A and B are parallel in opposite direction. So this was the property number 3. Next property number 4. A is perpendicular to B if A dot B equal to 0. So this is simple, and dot product is 0 given if A vector is perpendicular to B vector. If A vector is perpendicular to B vector, angle between them is what? 90 degree. So A dot B equal to, फिर से डेफिनेशन में जाते हैं, ए बी कॉस थीटा. तो ये थीटा क्या बनेगा? दिस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए बी कॉस थीटा. सो थीटा विल बी 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 0. सो दिस प्रोडक्ट विल बिकम 0. तो यह कॉन्वर्स भी ट्रू है. If A is perpendicular to B, then A dot B is 0, and if A dot B is 0, A is perpendicular to B. So this was the property number 4, and the next property is mod of A square. किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. सो व्हाई दिस इज ट्रू, इसका प्रूफ देखिए. A डॉट A को हम mod of A स्क्वायर या मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए क्यू लिख सकते हैं. तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है. अगर हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखने का है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो शेयर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए. सो शेयर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैं पहले ए डॉट ए ही लिखता हूँ. फिर से मेरे पास डेफिनेशन ओरिजिनल ऐसी है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. अगर मैं ए डॉट बी की जगह पे फिर से ए वेक्टर लेता हूँ, सो आई एम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ द सेम वेक्टर ए. सो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, magnitude of vector A is A, magnitude of vector A is A into cos of, अगर वेक्टर A की है तो द एंगल मेड बाय द वेक्टर A विद द सेम, उसी के साथ का एंगल कितना होगा? 0 होगा. सो दिस थीटा विल बी 0. सो हियर A into A is A square, cos of 0 is 1. सो A square means what? mod of A square. सो किसी भी वेक्टर के स्क्वायर को हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर लिखने का है तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. ओके, सो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज ए डॉट ए. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. नाउ सी, हियर आर सम स्क्वायर्स. ए प्लस बी स्क्वायर जैसा ए है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो इन प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है. तो दिस रिजल्ट्स आर वेरी यूज़फुल. तो ये भी कैसे रिजल्ट आते हैं देखिए. अब ये रिजल्ट देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर को इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. सो अगेन हियर इज़ द प्रॉपर्टी, पहले ही समझा देता हूँ. स्केलार प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. स्केलार प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है.
a dot b plus c. Here a dot b plus c is a dot b plus a dot c. a dot b plus c is a dot b plus a dot c. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए. अगर मेरे पास कोई वेक्टर है p डॉट q प्लस r माइनस t वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p डॉट q प्लस p डॉट r माइनस p डॉट t. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं तो ए बनेगा ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी. So this will be equal to mod of a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b. So a dot a is mod of a square, a dot a is mod of a square plus a dot b plus b dot a. तो b dot a equal to a dot b कम्यूटेटिव है, तो b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकता हूँ. सो a डॉट b प्लस a डॉट b क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a dot b and again b dot b is mod of b square. So therefore mod of a plus b whole square is mod of a square plus mod of b square plus 2 times a dot b. Okay. Similarly you can prove mod of a minus b whole square equal to mod of a square plus mod of a b square minus 2a dot b. And similarly you can prove a dot b a plus b dot a minus b equal to mod of a square minus mod of b square. This is also very important formula ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो इसको भी आप नोट कीजिए. अगर इसका मैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी. और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी ऐसे टर्म्स मिलेंगे. एंड उसमें ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी को लिखूँगा मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर. फिर से 2 कॉमन लेके मुझे ए टर्म्स मिल जाएंगी. सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. So this was the property number 6. Now the very important property is, इसमें भी इस प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है. तो आप जानते हैं आई जे के क्या होते हैं. सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो इनके डॉट प्रोडक्ट्स के रिलेशन क्या है. व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन आई जे के फॉर द डॉट प्रोडक्ट. So here students, now we will discuss this property number 7 for the dot product of unit vectors on the coordinate axis. Very useful in solving the problems. So unit vectors along x axis, y axis and z axis are ijk. So this is x axis, y axis and z axis. Unit vector along x axis is I, unit vector along y axis is j and unit vector along z axis is k. तो I dot I, J dot J, K dot K, K 1 होता है. I dot I is the unit vector. फिर से देखिए डेफिनेशन a dot B इक्वल टू क्या है ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन vector A and vector B. So magnitude of I vector, that is unit vector, is 1 into this unit vector का magnitude 1 into cos of angle between I vector and I vector क्या होगा 0. So cos 0 is 1, therefore it is equal to 1. Therefore same vector से I JJ और KK, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा. अब देखते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई क्या होता है 0. सो आई डॉट जे, सो एडिंग यूनिट वेक्टर आई एंड यूनिट वेक्टर जे अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस.
सो एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड जे वेक्टर थीटा कितना होगा 90 डिग्री. सो आई डॉट जे, तो ए वेक्टर इज, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज 0. तो उसी तरह से ये परपेंडिकुलर वेक्टर थे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. सिमिलरली जे एंड के आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा. एंड आई एंड के आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा. और ये कम्यूटेटिव भी है, तो आई डॉट जे 0 यानी जे डॉट आई भी 0, जे डॉट के 0 तो के डॉट जे भी 0, के डॉट आई 0 तो आई डॉट के इज ऑल्सो 0. सो दीज आर, एंड इसे आप ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं. सो दीज आर द वेक्टर्स आई, जे, के, आई, जे, के 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आई डॉट आई 1 होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, आई जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1. ओके, सो दिस इज वेरी important property of scalar product. Next property is m and n are the scalars. Here m is a scalar, n is a scalar. So m into a vector dot n into b vector को m into n into a dot b लिख सकते हैं. यानी प्रोडक्ट में स्केलर है तो स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होगा डायरेक्टली, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा. -2a वेक्टर डॉट -2a वेक्टर डॉट 5b वेक्टर, तो -2 और 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा -10 इंटू ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 9 मैंने पहले से समझाई, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 10. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है. डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसा लिख सकते हैं? पहली तो ये डेफिनेशन है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है. दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट? ए बी कॉस थीटा. दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन. अगर हमें वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हैं तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिख सकते हैं? ओके, सो हियर द वेक्टर्स आर a1i प्लस b1j प्लस c1k वेक्टर a एंड वेक्टर b हैज a2i प्लस b2j प्लस c2k. ओके, सो वेक्टर a इज a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इज a2i प्लस b2j प्लस c2k. मुझे अब डॉट प्रोडक्ट लिखने का है. मेरे पास ओरिजिनल डेफिनेशन है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिख सकते हैं? सो a डॉट बी इज ए वेक्टर इज a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट बी वेक्टर इज a2i प्लस b2j प्लस c2k. अब स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. देखिए दिस प्रॉपर्टी a डॉट बी प्लस सी इज a डॉट बी प्लस a डॉट सी. तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो a1i डॉट a2i, तो a बनेगा a1 a2i डॉट i प्लस, अब देखिए a1i प्लस b2j, तो ये बनेगा a1 b2 i डॉट j. फिर थर्ड टर्म क्या मिलेगी? a1 i डॉट c2k, तो ये बनेगा a1 c2 i डॉट k. तो इस तरह से मैं पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट करूँगा. तो मुझे a1 a2 और ये i डॉट i क्या होता है? 1. फिर से यहाँ पे i डॉट j 0 0 इंटू दिस 0, आई डॉट के भी क्या होता है? 0, तो ये भी बनेगा 0. तो इस तरह से कुछ टर्म्स मुझे 0 मिलेंगे. और यहाँ पे मुझे जैसा a1 a2 मिला है वैसा b1 b2 भी मिलेगा. फिर से कुछ 0 मिलेंगे, फिर c1 c2 मिलेगा. सो इसको शॉर्ट में हमें इस तरह से लिखने का है.
कि a dot b in terms of components is a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2. So that is a स्केलर क्वांटिटी. तो इस तरह से हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जांपल एक मैं स्केलर प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ. इफ़ आई हैव द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर गिवन. If these two vectors are here, suppose vector A is 5i minus j plus 3k and I have this vector B minus 3i plus 2j minus 7k. तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो A डॉट B इज इक्वल टू, दिस इज a1i plus b1j plus c1k. दिस इज a2i plus b2j plus c2k. तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? a1 a2. सो a1 a2 इज 5 इंटू माइनस 3 प्लस b1 b2. तो b1 b2 क्या होगा? -1 इंटू 2 प्लस c1 इंटू c2. तो c1 कितना है? 3. c2 कितना है? -7. तो ये बनेगा -15 -2 -21. जो मिलेगा वो आंसर, that will be the scalar quantity, and this is the scalar product of vector A and vector B. So this is the scalar product in terms of components. A dot B equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 if the vectors are like this. And the property number 11, cosine of angle between vector A and vector B. तो यहीं पे छुपा है, यहीं पे ये छुपा है. cos of angle between, दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला यहीं पे है, डेफिनेशन में ही cos ऑफ थीटा है. सो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन cos ऑफ थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द cos ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b. सो दिस इज a डॉट बी अपॉन, तो a यानी मॉड ऑफ a, b यानी mod of b. So this is the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B. अगर थीटा एक्यूट है तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है. cos ऑफ थीटा इज mod ऑफ A डॉट B अपॉन ए बी. सो अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो cos ऑफ थीटा कैसा लिखेंगे? इफ़ द वेक्टर्स आर इन गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसके लिए एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ इफ दिस वेक्टर इज ए वेक्टर a1i plus b1j plus c1k, b vector is a2i plus b2j plus c2k, and if these are the two vectors a and b having angle between them as theta, then this cos theta can be written as, तो मेरा फॉर्मूला है a डॉट b, दिस a डॉट b. तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ a. तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर b. तो इस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो दिस गिव्स द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर B, एंड दिस एंगल इज एक्यूट. अगर ये एंगल एक्यूट है तो यहाँ पे मॉड साइन लेना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा. सो दिस गिव्स द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 11, एंड द लास्ट फार्मूला इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ई. तो प्रोजेक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? ये स्केलार प्रोजेक्शन है, और वेक्टर प्रोजेक्शन भी हम निकाल सकते हैं. उसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. सो दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वेक्टर टॉपिक को सर्च कीजिए, उसमें आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ भी मिलेगा. लेकिन फॉर द दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ओनली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी, एंड दिस विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट, that is the dot product. So here again I have to find the projection of vector A on vector B. So
if I have this vector A and this is the vector B, this is the vector OA vector is A vector, OB vector is B vector, I have to find the projection of vector A on vector B. So I will draw perpendicular from this point A on the vector OB, let this OM and let this angle is theta. So I have to find the length of OM. So this length of OM is called what? Projection of vector A on vector B. So इस प्रोजेक्शन को निकालने के लिए मैं यहाँ पे एंगल दिया है cos ऑफ थीटा. सो cos ऑफ थीटा क्या होगा? OM एडजेसेंट बाय OA. तो मेरा OM मैं लिख सकता हूँ OA इंटू कॉस थीटा. सो OA वेक्टर इज ए वेक्टर, मॉड ऑफ OA इज ए. OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड A इंटू कॉस थीटा. सो दिस dot product of vector A and vector B is A dot B equal to AB cos theta. So A into cos theta, A into cos theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? A into cos theta को क्या लिख सकता हूँ मैं? A dot B upon B. So B is magnitude of vector. So this is the formula of projection of vector A on vector B, that is A dot B upon mod of B. So projection of vector A on vector B is this, and similarly you can find projection of vector B on vector A. So that will be A dot B upon, अब यहाँ पे on vector B है तो upon mod of B, on vector A है तो upon में आएगा mod of A. So this gives the projection of vector B on vector A. So students, these are the properties of scalar product यानी dot product of two vectors A and B, and using this property all types of problems for MST CET can be solved. So in the next lecture we will solve the important properties on dot product, that is the scalar product. Okay students, bye.